After completing my discussion with the mathematics straight line, physics, kinematics, and it's a time something in chemistry. So I'll start the topic with the mole concept, right? And the most genuine thing I think it will be in your mind that how is it possible for someone to complete all maths, physics, chemistry, everything at the JEE level, right? So my one line answer is that anything is possible. A highly dedicated work is required. If you are doing that, then anything is possible, right? So without wasting any time, I will start with my first question, and that is the equation is given here. Calcium carbonate equation is given, right? So it is metal carbonate acid, it will give salt, water, CO2. We all study in class 10th, and the question is about mole concept. And in this, the question is if 90 gram of calcium carbonate is added to 300 ml of HCl, which contains 38.55% of HCl by mass and has a density. So important thing is that कि अगर हम सबका ना मोल्स निकाल ले, हर जितनी भी क्वांटिटीज दी उन सबके अगर आप मोल्स निकालोगे तो आप देखोगे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद द 2 मोल्स ऑफ HCl to give 1 mole of calcium chloride and like that, right? So if I will write the equation again here, equation is already given. The calcium carbonate plus twice of HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2. Right, the question is simple. इसमें आपको 90 gram of calcium carbonate is given. So first I will find the mole. For moles you can find by mass upon molar mass. Simple. तो mass is 90 gram calcium carbonate and molar mass you can calculate. calcium carbonate का 100 होता है, if you know, है ना? तो यहाँ पे इसकी values given रहती हैं 40 and carbon is 12 and you can just calculate calcium carbonate का molar mass, that is 100, right? So it will become 0.9 moles. So 0.9 moles of calcium chloride. And what about HCl? How many moles of HCl is there? So about HCl, they have not given the mass and the moles. They are given that 300 ml of HCl and the density is in again gram per ml. So it is ml, it is gram per ml. If you'll go dimensionally, you know that if you multiply this, you'll get the mass of HCl. So mass is equal to volume into density होता है. Mass is equal to volume into density. So volume is 300 and the density is 1.13. If you just multiply ये 100 इस decimal से चला जाएगा and यहाँ से बचेगा 3 into 133, that will be 933. That means 339 grams of HCl mass. But mind it, यहाँ पे HCl ना HCl का जो mass है 339, that is the diluted HCl. Right, so HCl is already given. It is 38.55% HCl is there. It is not 100% HCl. अगर if it is 100% HCl तो मैं इसका mass just 339 ग्राम ले लेती. But it is given, it is 38.55% concentrated, right? So mass of HCl, बाकी तो उसमें water ही रहेगा. तो 339 ग्राम तो आपका पूरा diluted HCl का mass आया है, राइट, क्योंकि जब हमने इसको वॉल्यूम इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया है तो 339 को आपको इसके हिसाब से 38.55 अपॉन 100, राइट? तो यहां से आपको मिल जाएगा इसका क्या, मास ऑफ प्रॉपर HCl जो रिएक्ट करेगा इन दिस equation, right? So I will just use the calculator. 339 into 38.55. To save the time, you can just multiply this and divide. So 339 into 38.55. So if I'll divide it, then it is 130.68 gram. This is 130.68 gram, right? So ये आपका mass of HCl हुआ. तो mass के बाद we'll have to calculate the moles also. तो moles is mass upon molar mass. Then it will become 130.68 upon molar mass of HCl. This is 35.5 plus 1. It is 36.5. So if I will divide it with the 36.5, so I will divide it with 36.5. Then I will get 3.58. So 3.58 moles are there, right? And 0.9 moles of calcium carbonate. And पता है कि 1 mole of this is going to react with the 2 moles of HCl, right? So for 0.9 of this, इसका twice करोगे, you will require, how much HCl is required for that? That is 1.8. 1.8 moles of HCl is required. बाकी सब रिएक्शन में रह जाएगा, right? That हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता होता है. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ना, जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है. The reactant which consumes
earlier, जो रिएक्शन में पहले कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड योर लिमिटिंग रिएजेंट. सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.9 का डबल इसका कंज्यूम होगा, यानी कि 0.9 इंटू 2 1.8 इसका कंज्यूम होगा. तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा लिमिटिंग है, तो अनरिएक्टेड HCl ही रह जाएगा, राइट. तो अगर मैं ये इसके मोल्स है HCl के और ये इतने मोल्स आपके HCl के इसमें कंज्यूम होंगे, तो इफ यू विल जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, तो 3.58 माइनस 3.58 माइनस 1.8 कर लो. तो अगर आप सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्ट कर लो 3.58 माइनस 1.8, सो you'll get 1.78, राइट. तो 1.78 मोल्स ऑफ HCl जो होगा वो हमारे पास अनरिएक्टेड रह जाएगा इफ यू विल सब्ट्रैक्ट इट. तो मोल्स में आंसर नहीं पूछ रहा, आंसर इज आस्किंग इन मास. तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द मोलर मास, बिकॉज मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, राइट. तो 1.78 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 36.5 से, यू विल गेट 64.97, राइट. तो 64.97 अनरिएक्टेड रह जाएगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 64. तो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, एक ही फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर. छोटा सा कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट का लगता है ना, और यू कैन इजीली कैलकुलेट इट, वेरी वेरी इजीली, राइट. एंड सेकंड क्वेश्चन, सो इस बार 6 क्वेश्चन आया था, मैंने एनालिसिस में बता रखा है कि 6 क्वेश्चन वाज फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट इन ऑल द 10 पेपर्स, राइट. So the reaction is given A plus 2B is AB2, correct, and the molar mass of A and B is given. तो reaction मुझे elemental form में नहीं दिया हुआ है, इस form में दिया है, तो मुझे इसमें find करना है कि which one is a limiting reagent. तो limiting reagent find करने का simple सा method होता है कि आप moles calculate कर लो, है ना. तो यहाँ पे reaction जो लिखी है इसको फिर से लिख देती हूँ, A plus 2B gives AB2. So mass upon molar mass if I'll do, then it is 36 and the molar mass is 60, right. तो 36 upon 60 is what? It is 0.6 moles, correct. And इसका mass मुझे given है 56 grams. So 56, if I'll write it here, 56 upon molar mass of B is 80 grams, right. So 56 upon 80, if you'll do, it will become 0.7 moles. 856, it is 0.7 moles, correct. So 0.6 moles are here and 0.7 moles are here. So which one can be limiting? क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट करता है, यानी कि अगर इसका मैं 0.6 कंप्लीटली रिएक्ट करा दूं तो 0.6 into 2 1.2 मोल्स आर रिक्वायर्ड. 1.2 है ही नहीं, 1.2 is not there. That means रिएक्शन में पहले B कंज्यूम हो जाएगा, तो A कैन नॉट बी द लिमिटिंग रिएजेंट. तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, राइट. तो रिएक्शन में B इज लिमिटिंग. फर्स्ट थिंग इज क्लियर, विच वन इज लिमिटिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि why you must calculate which one is the limiting reagent, right. जो कंज्यूम पहले हो जाता है, इसका 0.6 खत्म नहीं होगा, पहले इसका 0.7 कंप्लीट हो जाएगा. तो इसका अगर 0.7 कंप्लीट हो गया, राइट, तो अब मुझे ये बताना है हाउ मच AB2 विल बी फॉर्म. तो जो भी रिएक्शन में बनता है, राइट, जो भी फॉर्म होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट. तो अगर हमारे पास भी अगर लाइफ में कोई भी चीज अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो लिमिटिंग होता है, जो चीज कम होती है, उसके अराउंड ही सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, राइट. तो 0.7 मोल जो है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बनेगा, राइट. तो ये मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, तो फाइनल प्रोडक्ट कैलकुलेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट ओनली, राइट. तो यहाँ पे अगर इसका 2 है तो 2 मोल से इसका 1 मोल फॉर्म होता है, राइट. तो इसका अगर 0.7 मोल्स है तो इसका कितना मोल्स फॉर्म होगा, उसका हाफ. 0.7 का हाफ कितना होता है, दिस इज 0.35 मोल्स ऑफ AB2 विल बी फॉर्म. तो कितना AB2 फॉर्म हुआ वो ये पूछ रहा है, बट ये मैंने मोल्स निकाला है कि हाउ मच मोल्स ऑफ AB2 इज फॉर्म. तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो AB2 का मोलर मास में निकाल देती हूँ. AB2 का मोलर मास क्या हो जाएगा, A इज 60 एंड B को ट्वाइस करोगे तो B इज 80, 80 into 2 is 160 एंड यू विल एड इट is 220. तो 220 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 0.35 into 220, राइट. तो देन यू विल गेट योर मास. तो 0.35 को यू कैन राइट फॉर द कैलकुलेशन, 3.5 is 7/2, so you can write it 7/20. Then it will become 77. 11 into 7, it will become 77 gram of AB2 is formed. So option B is completely correct. 77 gram is given here, and this is correct.
एंड ये तो गलती हो गया क्योंकि मैंने इसका मोलर मास अभी भी निकाला है, दिस इज 220 एंड हियर इट इज गिवन 140, सो इट इज रॉन्ग। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि ए इज लेफ्ट। अच्छा मुझे यहाँ पे ऑप्शंस नहीं देखने, इसमें बताना है इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट? तो बी इज करेक्ट है ना, तो ए रॉन्ग हो गया तो मैं यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकती हूँ, ए गलत है तो ये दोनों तो गलती हो गए। एंड आफ्टर दैट बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी ही होगा। लेकिन मैं डी को भी एक बार चेक करूंगी कि 15 ग्राम ऑफ ए इज लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन, तो कौन सा अनरिएक्टेड रह जाएगा? ऑब्वियसली बी लिमिटिंग है तो बी तो कंप्लीटली कंज्यूम होगा, यही अनरिएक्टेड रह जाएगा, राइट? तो अब इसका 0.7 मोल है, दैट मीन्स इसके 1 मोल से इसका हाफ कंज्यूम होता है, तो इसके 0.7 से इसका सिर्फ 0.35 कंज्यूम होगा, तो कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा मोल इसका? 0.6 माइनस 0.7 का हाफ, दैट इज 0.35। तो 0.6 में से आप 0.35 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल गेट 0.25 moles. So 0.25 moles of A will remain unreacted, but he is asking about the mass. तो moles को mass में convert कर लेते हैं, 0.25 into its molar mass of A. Molar mass of A, that is 60, right? 0.25 को you can write 1/4. 1/4 into 60, it is 15 gram. So 15 gram of A is left unreacted, right? So answer is your B and D only, correct? So this one is correct. And the next one, एल्यूमिनियम प्लस HCl, यहाँ पे मुझे इक्वेशन दी हुई है और ये चेक करना है। आई थिंक दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन बिकॉज इसमें यहाँ पे एल्यूमिनियम भी दिया है, HCl भी दिया है, और मुझे सिर्फ ये बताना है कि STP पे फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम्ड, राइट? फॉर एवरी मोल ऑफ HCl, यहीं से क्वेश्चन को पिक करना होता है। एवरी मोल ऑफ HCl यानी कि 1 मोल HCl अगर हम कंज्यूम हो रहा है तो कितने लीटर हाइड्रोजन आपका बन रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी फॉर्म, राइट? फॉर एवरी मोल ऑफ HCl। तो मुझे पता है कि इसके 6 मोल से 3 मोल्स हाइड्रोजन फॉर्म होता है, स्टोइचियोमेट्री से ही क्लियर हो जाता है, ठीक? तो इसके 6 मोल्स अगर HCl कंज्यूम होते हैं तो उससे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म हो जाता है, राइट? तो अभी कह रहा है फॉर एवरी मोल, राइट? तो 1 मोल HCl से कितना फॉर्म होगा, दैट विल बी, इसका हाफ होता है, दैट मींस 1 का हाफ या 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म होगा। और मुझे ये पता है कि 1 मोल अगर STP पे देखते हैं तो उसमें जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर, राइट? 1 मोल का जो मोलर वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर, सो 0.5 मोल्स का जो वॉल्यूम होगा दैट विल डेफिनेटली 11.2 लीटर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कंप्लीटली करेक्ट। यू कैन चेक द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन। यहाँ पे ये वाला तो ऑप्शन गलती हो गई क्योंकि ये यही चीज पूछ रहा था, और 12 लीटर ये तो इसने मोल्स के बारे में होता है कि स्टोइचियोमेट्री से इसने इसको 22.54 से मल्टीप्लाई किए बिना ही लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्टोइचियोमेट्री से गलत है ये। अब यहाँ पे बी पार्ट में कह रहा है इतने मोल H2 से हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नो, it's only for STP, it's not regardless of temperature and pressure, right? So this option is again wrong. So answer is A. And the next question is aqueous solution, aqueous HCl reacts with MnO2. So here the equation is not given, so first you must write the equation for that, right? So HCl is reacting with the MnO2, so I'm just writing the equation HCl plus MnO2 gives इसने क्या दिया है, MnCl2, Cl2 and water. तो MnCl2 plus Cl2 plus water. तो first you need to balance this equation. तो यहाँ पे MnO2 है तो you will just write 2 here and 4 here हो गया हाइड्रोजन, तो 4 हो जाएगा, and I think now it is balanced because chlorine is 2 plus 2 4 and 4, right? This reaction is balanced. तो first अगर हम balance कर लेते हैं तो we get the stoichiometry of the equation, right? तो question is from what is the weight of chlorine? तो मुझे क्लोरीन का वेट चाहिए. What is the weight of chlorine liberated when 8.7 gram of MnO2 is reacted, right? तो हमें MnO2 का मास गिवन है, that is 8.7 gram, right? तो 8.7 gram is the mass. तो मोलर मास MnO2 का निकाल लो, यहाँ पे सब डेटा गिवन है. मोलर मास MnO2 का हो जाएगा 55, O2 16 into 2, it will become 32, so it will 5 plus 2 7 and 8 87 मोलर मास. तो मैं मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर दूंगी बिकॉज मोलर मास इज ऑलवेज ग्राम पर मोल, राइट? तो इट गिव्स मोल. तो यहाँ पे आ जाएगा, ये ग्राम पर मोल ही होता है, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल. तो 0.1 मोल MnO2 है, तो हमें पता है स्टोइचियोमेट्री से इसके 1 मोल से 1 मोल क्लोरीन बनता है, करेक्ट? तो अगर 0.1 मोल है तो 0.1 क्लोरीन बनेगा. दिस वाज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. 0.1 मोल क्लोरीन बनेगा. इफ यू आर आस्किंग द मास और द वेट ऑफ द क्लोरीन, केमिस्ट्री में ना वेट और मास सेम होता है, फिजिक्स में वेट की यूनिट न्यूटन होती है, राइट? है ना? तो यहाँ वेट और मास सेम है. तो वेट इसका मोल्स निकल गया है 0.1, और अगर हम इसको
0.1 मोल है, तो 0.1 मोल को अगर हम इसके क्लोरीन के मोलर मास से मल्टीप्लाई 35.5 इंटू 2 करोगे, इट विल बिकम 71. तो 71 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन. सो आंसर इज डी पार्ट, राइट. तो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर किसी ने प्रैक्टिस किया होगा तो इस piece of cake. And next one is the fifth one, and 80 ml of hydrocarbon on mixing with oxygen. This was quite गुड क्वेश्चन आई कैन सी, बिकॉज 80 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें आपको पूरा इक्वेशन करके एक्स के टर्म में निकालना पड़ेगा. और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उस हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी कि यहाँ पे क्या वैल्यूज आ रही है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कार्बन है, आपको पता है कि इनफाइनाइट कंपाउंड्स बनाता है. अब इसमें कुछ भी हो सकता है, राइट. तो हम एक्स वाई लेके स्टार्ट करते हैं इसका. तो कार्बन में हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स कार्बन है और हाइड्रोकार्बन में एक्स वाई कुछ भी हो सकता है ना. बट मुझे ये पता है कि अगर कंप्लीट कंबशन बोल दिया तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर कंप्लीट कंबशन कराते हो तो यू विल ऑलवेज गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, राइट. सो करना क्या है, पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, राइट. तो यहाँ पे कार्बन के एक्स है तो यहाँ पे एक्स के टर्म में मैंने इसको XCO2 कर लिया. अब यहाँ पे हाइड्रोजन इज वाई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को वाई करने के लिए y/2 करना पड़ेगा. हाइड्रोजन वाई हो गया. अब नाउ यू कैन ऐड हियर हाउ मच ऑक्सीजन इज हियर, सो इट इज 2x एंड प्लस y/2. इतना ऑक्सीजन इधर है तो इधर भी इतना ही होना चाहिए. तो यहाँ पे इसका क्योंकि O2 है तो इसको हाफ करोगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस y/4, right. So important thing is this, you must know how to balance the equation in the variable form, right. तो यहाँ पे इक्वेशन को मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ, x प्लस y/4. तो अगर ठीक से लिखूं XCXHY प्लस x plus y/4 oxygen will give XCO2 plus y/2 H2O. Now the question will start, right? तो 80 ml of hydrocarbon, तो मुझे इसका वॉल्यूम पता है, 80 ml हाइड्रोकार्बन और 264 ml of oxygen in a closed UU undergoes, ठीक है. तो it is 264 ml of oxygen is here, right. The residual gases after कंबशन, तो कंबशन की बात होता है क्या ना, हाइड्रोकार्बन तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा. रेसिडुअल गैसेस में मेरे पास क्या बचेगा, ऑक्सीजन और CO2, क्योंकि ये तो वेपर है ना. अब ये दोनों गैसेस बचेंगी, इनका जो सम है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है. द रेसिडुअल गैसेस का जो सम है वो 224 ml गिवन है. तो मैं मुझे करना क्या है, बेसिकली जो रेसिडुअल गैसेस का जो वॉल्यूम निकालेंगे उसको बस 224 से इक्वेट कर देंगे. और सेकंड इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी क्योंकि दो वेरिएबल है यहाँ पे x और y. तो सेकंड इक्वेशन आपकी बनेगी क्योंकि सिस्टम इज ट्रीटेड विद अ KOH सॉल्यूशन. तो जब हमें पता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको जब KOH से कराते हो तो पोटेशियम कार्बोनेट बन जाता है, राइट. तो CO2 हट जाती है, CO2 हट जाती है, राइट. तो हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन बचेगी. तो वो जो ऑक्सीजन बचेगी, कितनी बची है ऑक्सीजन, वो क्वेश्चन में दे दिया है. इट इज 64 ml ऑक्सीजन बच रही है. वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 64 ml, राइट. तो अभी पहले केस में जो गिवन है, फर्स्ट केस में फर्स्ट इक्वेशन के लिए कि जो रेसिडुअल गैसेस का मतलब यहाँ पे दो गैसेस, राइट, ऑक्सीजन एंड CO2. तो अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो इसका पूरा कंप्लीटली 80, मुझे पता है इसके 1 से इसका x प्लस y/4 ऑक्सीजन जाता है, राइट. तो इसके 1 मोल से इसका इतना मोल जाता है. तो इसके 80 ml से, इसके 80 वॉल्यूम से इसका कितना जाएगा और बचेगा कितना, मतलब कि व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर द कंप्लीट कंबशन, वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे. तो 264 टोटल था और उसमें से जब कंज्यूम होने के बाद कितना बचेगा, 80 टाइम्स x प्लस y/4, क्योंकि इतना हो चुका है कंज्यूम और इसमें से मैंने टोटल में से माइनस कर दिया. तो ये आपका लेफ्ट बिहाइंड हो गया, राइट. और इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा, बिकॉज इसका 80 वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है तो इसका 80x बनेगा, राइट. तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 80x बनेगा. तो इन दोनों का जो सम है, तो जो सम है दैट इज योर 264, करेक्ट. तो मैं इन दोनों को ऐड करके 264 के इक्वल कर दे रही हूँ. बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे 264, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा माइनस का 80x एंड माइनस 80 इंटू y/4, 4 2 जा 8, इट विल बिकम -20y प्लस 80x. मैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड कर रही हूँ एंड टोटल वैल्यू है हमारे पास कितनी, दिस इज 224, राइट. दिस इज 224, ओके, 224 के इक्वल. तो ये 80x गया, यहाँ से आपका 264 माइनस 224 कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा 40. तो 40 इज इक्वल टू 20y, तो y का वैल्यू आ गया 2. सो y इज 2,
राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास आ गया, फर्स्ट कंडीशन से आ गया कि y is 2. Now from the second KOH I can say that this carbon dioxide will be absorbed in that. तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं रहेगा, राइट। तो अब मेरे पास रिएक्शन में सिर्फ ये बचे लेफ्ट ऑक्सीजन, राइट, विच इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द KOH. तो अब ये वाली जो वैल्यू है वो मुझे गिवन है 64 ml. तो इसको बस 64 के इक्वल कर दो और y को 2 के इक्वल पुट कर दो. तो y को अगर मैं यहाँ 2 पुट कर देती हूँ तो 2 2 जा 4. तो यहाँ से बनेगा मेरे पास इक्वेशन 264 माइनस 80x, और ये 80 इंटू y को मैंने 2 पुट किया था ना, तो ये 40 बाई 80 बाई 2, 80 बाई 2 इज माइनस का ये 40 हो जाएगा, माइनस का 40 इज इक्वल टू 64. तो 80x को राइट ले जाओ और 64 माइनस 40, तो यहाँ होगा मेरे पास 224 माइनस 64 इज इक्वल टू 80x. तो 224 माइनस 64 इट विल बिकम 160, राइट. तो 160 इज इक्वल टू 80x. तो x की वैल्यू भी 2 आ गई. So x and y both are 2, so that means answer is C2H2, right? Hydrocarbon was CXHY, right? So answer is C2H2. तो दिस वाज, आई कैन से इट वाज अ गुड क्वेश्चन. यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा क्योंकि केमिस्ट्री में जनरली क्वेश्चन आसान आता है और केमिस्ट्री के पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ गया तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है. नेक्स्ट ये मेरा क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस मोल कॉन्सेप्ट. तो कैल्शियम मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद द HCl. तो कैल्शियम को HCl से रिएक्ट करा दो. कैल्शियम इज रिएक्टेड विद HCl, राइट. HCl मुझे जो कंडीशन है वो STP की दी गई है, 1 atm एंड 23 केल्विन टेम्परेचर कंडीशन देख लिया करो, STP कंडीशन है. और हमें ये अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि देखो मेटल प्लस एसिड दे दिया है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनने वाला है, तो CaCl2 और हाइड्रोजन बनेगा, और यहाँ पे अगर बैलेंस करेंगे तो 2HCl आ जाएगा, राइट. तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड, राइट. तो कितना हाइड्रोजन यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है आपको ये बताना है. और हमें ये दिया हुआ है कैल्शियम मेटल का मास, दैट इज 14 ग्राम. तो मोलर मास इसका जो होता है दैट इज 40. तो 14 बाई 40 कर लेते हैं तो ये मुझे मोल्स मिल जाएंगे किसके, HCl के, ठीक. तो अगर 2 7 जा एंड ये 20, तो 7 बाई 20 0.35 मोल्स लिख सकते हो. 7 बाई 20 मतलब 0.35 मोल्स. तो अब इस स्टोइचियोमेट्री देखो तो इसका हाइड्रोजन कितना इवॉल्व होगा, 0.35 मोल से 0.35 मोल. तो आंसर तो ये हो गया. ओके, इसमें इनकरेक्ट बताना था, राइट. माइंड इट व्हाट दे आर आस्किंग, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट बताना है. तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि 0.35 मोल हाइड्रोजन ही इवॉल्व हो रही है. बच्चे इसको गलती से क्लिक करके आ जा सकते हैं क्योंकि सोचेंगे कि ये आंसर करेक्ट है, बट दे आर आस्किंग द इनकरेक्ट ऑप्शन, करेक्ट. तो अब सेकंड में है इतना हाइड्रोजन, इतना लीटर हाइड्रोजन. तो मुझे पता है कि 1 मोल के लिए 22.4 लीटर इवॉल्व होता है. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले किससे, 0.35 को किससे मल्टीप्लाई करें, 22.4, 0.35 इंटू 22.4. तो 0.35 को यू कैन राइट 7 बाई 20, तो 7 बाई 20 इंटू 22.4. तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेती हूँ तो ये आएगा 10 एंड 2 से आएगा 11.2, और 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और 10 से डिवाइड करोगे तो 7.84. दिस ऑप्शन इज अगेन करेक्ट, है ना. तो 7.8 लीटर हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है क्योंकि 1 मोल पे आपका 22.4 लीटर इवॉल्व होता है, और यहाँ 0.35 मोल है तो 0.35 को मैंने बस 22.4 से मल्टीप्लाई किया था, करेक्ट. और लिमिटिंग रिएजेंट इज HCl, ऑब्वियसली क्योंकि इसने कह दिया लिमिटिंग रिएजेंट तो HCl है, क्योंकि एक्सेस ऑफ HCl से अगर आप करा रहे हो तो ये एक्सेस में है तो यही लिमिटिंग हो गया ना, कैल्शियम लिमिटिंग हो गया. तो दिस ऑप्शन इज अगेन करेक्ट. तो आंसर तो यही होगा, बस एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं. यही होगा ही, है ना, क्योंकि बाकी सारे सही हैं तो इनकरेक्ट ही होगा. तो CaCl2 का मास पूछ रहा है, तो CaCl2 का मोल्स कितना होगा. मुझे पता है कि इसके 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका 0.35 मोल्स ही प्रोड्यूस होगा. तो मुझे मास फाइंड करना है, तो 0.35 मोल्स को मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूंगी. कैल्शियम क्लोराइड का मास जो होगा वो कैल्शियम का 40 होता है एंड Cl2 का हो जाएगा 71, ठीक. और ये हो जाएगा 1 एंड दिस 111. तो 111, और इसको अगर मैं 0.35 को अगर मैं 7 बाई 20 लिख दूं तो ये वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करके अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूं तो ये वैल्यू 38 पॉइंट कुछ आ रही है, क्योंकि ये 777 आ जाएगा. 777/20 अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते 3 2 जा 6 और 2 8 जा 16, राइट. तो 38 पॉइंट आ रहा है और ये यहाँ पे 33 पॉइंट दिया है. तो सो दिस वन इज इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट ही आंसर है, तो आंसर डी पार्ट होगा, राइट. So this was the last question and formula used में अगर मैं बोलूँ तो फॉर्मूले के नाम पे सिर्फ इसने लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट 1 मोल में 22.4 मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. नथिंग डिफिकल्ट टू अस देयर, बट एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वाज सिंपल.
So I think the questions are over. So thank you so much for listening. We'll see you in the next video.